Yes, Ronak? Not Ronak, sorry. Ronak is in class 8. Class 8. Ronak. Class 8. Ronak, right? Okay, so please unmute yourself, everyone, before I start the lesson. Okay, so today's topic is your adjective, isn't it? As I had sent you in the morning, that today we'll study adjective in grammar part. So all of you please write it down, adjective, and underline that. I will see your copy also. That's why you have to write neat and clean. Have you written down, beta, all of you? Yes, Gunjan? Did you write, beta? Can you hear me? Karan, Kunal? Aditya? Yes, ma'am. Yes, beta, all of you can hear me nicely. If you cannot hear, just you tell me, okay? Yes, ma'am. Haan. So unmute yourself, everyone, so that you can hear clearly. Okay. So, beta, you know, as before I had you in class 6th also, then that adjective is a word that modifies a noun or pronoun or noun phrase. Clear? Yes, yes. Ma'am. याद है या नहीं है बच्चे? Do you remember something or not? If you are not remembering, I will teach you again. Rohan, unmute yourself, beta. Rohan. Rohan, हाँ. All of you unmute yourself so that you can hear me. An adjective is a word. You write it down fast. Aditya, are you here? Ranbir, are you here? Yes. An adjective is a word that modifies a noun or noun phrase or describe other words. Ma'am, again. Shall I repeat? Okay. An adjective is a word that modifies, MODIFIES, modifies a noun. Noun matlab name, okay? A noun or noun phrase. Or describes other words. Describes other words. Okay, Ranveer, can you read it out, beta? What you have written down? Ranveer? Yes, Ranveer, can you read it out, beta? Please put on your video. Karan, can you read it out, what you have written down just now? Yes, ma'am. Yes, please. Ma'am, an adjective is a word that
modify a noun or noun phrase or phrase, describes words. other words. हाँ, इसका मतलब होता है इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना गुंजन? Ma'am. इट डिस्क्राइब मतलब Yes, ये ma'am. बताता है, किसी का खूबियां बताता है ना बेटे, किसी का तारीफ करते हैं, है ना, या तो किसी का बुराई करते हैं, विच दैट पर्सन इज हैविंग सम गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यू विल सी व्हेनेवर यू मीट समवन, यदि किसी को हम देखते हैं, किसी को हम मिलते हैं, देन मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू कंप्लेन ना। कैसे कंप्लेन करते हैं, यू नो, ही इज अ वेरी बोरिंग पर्सन, और ही इज अ वेरी टॉल, ही इज वेरी शॉर्ट वन, है ना? यस और नो? यस। Yes, ma'am. हाँ, दैट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अभी देखोगे, अभी तो यू आर इन लॉकडाउन ना, आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स यू विल गो टू स्कूल, देन यू विल सी दैट सो मेनी गर्ल्स और बॉयज, दे विल बिकम वेरी टॉल, कोई कोई बहुत फैट हो जाएंगे, कोई कोई स्लिम हो जाएंगे, है ना? है ना? ये सो नो, घर में बैठे बैठे खा खा के कोई मोटे हो जाएंगे और कोई नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, है ना? Yes, ये सो ma'am. नो। हाँ, Yes, as ma'am. soon as you will go to the school, you will see all these structures, who has become very tall or fat or slim हो गया है, then what you do, you start complaining that you have put on such a lot of, such a much weight, अपने बहुत मोटे हो गए हो खा खा के, और कोई बोलेंगे you have become very thin, है ना? तो ये क्या हो रहा है बेटा, we are describing the person, हम क्या कर रहे हैं, वो पर्सन को क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या तो मॉडिफाइज कर रहे हैं। गॉट इट? Yes, यस और ma'am. नो? हाँ, तो जैसे जैसे कि आप लोग यू विल सी, और यू कैन से दैट डिग्री कभी कभी बढ़ जाता है। हाउ इट इज, इफ यू वांट टू impress or if you want to make that person to be happy, you say that you are looking very beautiful, you are looking today beautiful or more beautiful or most beautiful from all the girls, है ना? समझ में आया? तो कोई कोई क्या करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल लुकिंग है, तो उसको अच्छा से मतलब थोड़ा सा बढ़ा के क्या बोलोगे, उसका डिग्री बढ़ा के कैसे बोलोगे, यू विल से More. दैट यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, एंड उससे और ज्यादा सबसे ब्यूटीफुल, तो उसको क्या Most. बोलेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? सो जैसे कि Yes. आप लोग तो नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 ना, जब मैं छोटी Yes. थी इन इन मतलब 6 और 5 ऐसे कुछ थे, देन समटाइम्स दे टोल्ड मी अबाउट डिग्री। डिग्री जैसा कि मैं पहले क्या समझती थी पता है, जो टेम्परेचर नापते हैं ना, मेजर करते हैं जब हमको बुखार होती है, तो वो जो Yes, डिग्री ma'am. होता है ना, कितना डिग्री होता है, बुखार होता है तो 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री, है ना? तो ये डिग्रीज जो होता है, तो आई वाज अंडरस्टैंडिंग दैट वे। तो ये जो पहली बार मैंने सुना था डिग्री, जो कि मेजरमेंट लेने वाला डिग्री, बट व्हेन वी केम टू स्टडी, देन वी कुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर 3 डिग्रीज। कौन कौन सा होता है वो, 90 डिग्री, 60 डिग्री, वो मैथमेटिक्स वाला नहीं है बेटा, ठीक है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, 120 डिग्रीज, 45 डिग्रीज ऐसा पढ़ते हैं ना, बट दिस इज Yes, ma'am. समथिंग डिफरेंट, है ना? जैसे कि पॉजिटिव डिग्री होता है, एंड कंपैरेटिव होता है, एंड सुपरलेटिव होता है। सो यू नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक। जो कंपैरेटिव पॉजिटिव होता है उसमें तो हम डेली, जैसा कि यू विल से एब्सोल्यूट डिग्री, जिससे आप पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हो, एब्सोल्यूट डिग्री मतलब वो डिग्री चेंज नहीं करोगे उसी सेंटेंस में, जैसा कि थिन, थिन है, इट इज अ पॉजिटिव डिग्री। यदि हम थिन को डिग्री बढ़ाएंगे, इफ वी वांट टू रेस अप द डिग्री, देन व्हाट वी विल यूज, क्या यूज करेंगे?
थिन का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री यस बेटा, थिनर, यस, थिनर एंड सुपरलेटिव थिनेस्ट। नाउ अभी हम ये जो डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री को हम जादू करते हैं। कैसे जादू करेंगे? हाउ विल डू द जादू? व्हाट वी से दैट मैजिक, है ना? सो व्हेन वी वांट टू मेक द पर्सन मोर और डिस्क्राइब दैट पर्सन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, तो हम उसको कंपेयर डिग्री करते हैं, कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर विथ सम अदर पर्सन। क्लियर? जैसा कि रिच, रीचर, तो यहाँ पे यू विल से ज्यादा अमीर, है ना? रिचर, ई आर लगा देते हैं। एंड रिचेस्ट, ईएस्ट मीन्स उसे सबसे ज्यादा अमीर होता है। रिच, रीचर, richest. Okay, one more thing you have to remember. Okay, all of you are listening? Yes, बेटा, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ बेटे आप लोग को। सो यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लिसन केयरफुली। इन कंपैरेटिव डिग्री, सी, कंपैरेटिव डिग्री में वी राइट ई आर और आर। यदि ई पहले से दिया हुआ है देन ओनली वी राइट आर, इजंट इट? एंड यहाँ पे जैसे आर और ई आर कहाँ पे लगाओगे? यू रिमेंबर वन थिंग, ओके? वन सिलेबल जो होता है, मीन्स वन सिलेबल होता है जिसका एक ही बार आप क्या करोगे, उसको प्रोनाउंस कर पाओगे। जैसे कि थिन, हेवी, बैड, ओके, वीक, एक ही बार में बोल रहे हो, वो शब्द ब्रेकअप नहीं हो रहा है। उसमें आप लोग कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाओगे? ई आर लगाओगे एंड सुपरलेटिव में ई एस टी लगाओगे। क्लियर? मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। यस मैम। और एक बार रिपीट करूं? हाँ, देखो ध्यान से सुनो। जहां पे वन सिलेबल है, जो शब्द वन सिलेबल है जिसका ब्रेक नहीं कर सकते हैं हम, जैसे थिन को ब्रेक कर पाओगे? नो नहीं ना? मैम। रिच को मैम। ब्रेक कर पाओगे? रिच को ब्रेक कर पाओगे? नहीं ना? रीचर बोल सकते हो? नहीं, मैम। वी कैनॉट से रीचर, है ना? रीचर बोलोगे कि रिचर बोलोगे? रिच, रिचर, रिचेस्ट, है ना? रिच Yes, ma'am. एक ही बार में बोल पाए, उसको ब्रेकअप नहीं कराए, है ना? तो ये जो है, इसको वन सिलेबल मतलब एक ही शब्द जो है उसको एक ही बार प्रोनाउंस करेंगे, उसको ब्रेकअप नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे, दैट इज योर, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वन सिलेबल। और इसको वन सिलेबल जो है दैट इज ई आर लगेगा उसमें कंपैरेटिव डिग्री में, एंड सुपरलेटिव में आप लोग वहां पे ई एस टी लगाओगे। समझ में आया? Yes, ma'am. आ गया ना बेटा? जैसे कि ओल्ड, Yes, ma'am. ओल्ड को ब्रेक कर सकते हो? No, ma'am. नो। तो इसमें जो हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाएंगे, सो व्हाट यू विल यूज इन दैट? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा सनी। व्हाट यू विल यूज? ई आर और आर, है ना? आर सिंपली लगाओगे या तो ई आर लगाओगे। यदि वहां पे ई है तो ओनली यू हैव टू राइट आर। क्लियर? यस? Yes, ma'am. यदि वन मोर थिंग, यदि आप लोग का वहां पे मोर देन वन सिलेबल्स है, सिलेबल का मतलब होता है उसको ब्रेकअप करके बोलना, जो शब्द नॉट ओनली वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यस अनम्यूट कर लो बेटे। ब्यूटीफुल, beautiful. Now you see here, is it a one word or it has it is a one syllable or it has more than one syllable?
क्या बोल सकते हो ब्यूटीफुल को? more than one syllable. यस, मोर देन वन सिलेबल है. सो जहां भी बेटा वेर एवर यू विल सी दैट एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल, देन इट इज यू हैव टू राइट दैट आइदर मोर और मोस्ट. जैसे कि कंपेरेटिव में मोर लगाओगे एंड सुपरलेटिव में मोस्ट लगाओगे. क्लियर? मैम Yes, जिसके ma'am. दो सिलेबल होगा मैं उस पे ठीक मैं है, कंपैरेटिव में फिर मोर लगाऊंगा, ठीक है, सुपरलेटिव में ठीक है. मोर. मैं आप लोग को और एक बार समझा रही हूँ बेटा. यू हैव टू लिसन केयरफुली. ओके, सो वेर एवर यू हैव द एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल. वन सिलेबल का मतलब मैं बता दिया बेटा आप लोग को. वन सिलेबल का मतलब होता है वन सिलेबल एक ही बार बोलते हैं वो शब्द को, और जो मोर देन वन सिलेबल्स का मतलब होता है उस शब्द को हम दो भाग में बांटते हैं या तो तीन भाग में बांटते हैं. For example, beautiful. Beauty is one and full is one. Beauty plus full. Beautiful. Correct? Yes, Karan? समझ में आया? तो this has ma'am. more than one syllable. तो इसमें आप जब comparative and superlative बनाओगे, so you have to write not ER और EST. उसमें ER और EST नहीं लगेगा because it has more than one syllable. So here you will write more beautiful or superlative में most beautiful. Most beautiful. Clear हो गया? So this one you have to remember. इसीलिए आप लोग को कभी कभी क्या होता है हम मिस्टेक करते हैं, isn't it? मिस्टेक होता है ना बच्चे? Yes? Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी Yes, से ध्यान ma'am. रखना है. Now you are in 7th and further on you will go to 8, 9, 10. तो ये कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए आप लोग को. जो शब्द मीन्स हियर एडजेक्टिव. अबाउट एडजेक्टिव वी आर टॉकिंग. सो इन एडजेक्टिव देयर आर 3 फॉर्म्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जब पॉजिटिव दिया होता है, ये जो हमारा पॉजिटिव है एब्सोल्यूट डिग्री जो बोलते हैं, या तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं किसी का तारीफ करने के लिए, isn't it? तो ER और R ही लगता है जो हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में बनाते हैं. ओनली वन सिलेबल होता है तो एक ही शब्द में उसको बोलेंगे. जैसे रिच, थिन, स्वीट, बैड, वीक, confused, sorry, not confused, thin. ओके, तो ये सारे हमारा ओनली वन सिलेबल है, एक ही शब्द में है. वो हम उसको ब्रेकअप नहीं किए हैं. सो इन दैट यू हैव टू राइट ER और R. और सुपरलेटिव में EST. क्लियर? क्लियर हुआ? यस और नो? Yes ma'am. क्लियर हो गया. नाउ अनदर वन इज देर आर इफ देर इज मोर देन वन सिलेबल. अभी मैं गुंजन को पूछी थी ना दिस क्वेश्चन. सो सनी ध्यान से सुनना बेटे. सनी, आदित्य, आर यू हियर? अंकित, सारे बच्चे Yes, हैं ma'am. इसमें? यस, गुड. सो यहाँ पे बेटे यू सी जो सिलेबल, जो शब्द और एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल है जो कि वो ब्रेकअप करते हैं, हम उसको ब्रेक करते हैं. जैसे ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल. यदि ये दो शब्द जैसा लगता है तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे एंड सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे. क्लियर? Yes or no? Yes ma'am. Okay. Now you see one question I will give you. Ankit, are you ready to answer me? Yes, beta. Ankit, Aditya, कहाँ चले गए? All of you are here? Yes ma'am. ठीक है. One question I'm putting you. Who will give the answer? Okay. I'm not taking the name. Intelligent.
More Intelligent. intelligent. मैम मैं बताऊं? मैम मोस्ट इंटेलिजेंट। More intelligent. Yes, correct. More intelligent and most intelligent. क्यों हुआ बेटा ये? More intelligent and most intelligent क्यों हुआ? Why? मैम क्योंकि इस शब्द में मैम दो मैम मोर देन वन सिलेबल है। Yes, correct. Very much correct. क्योंकि this adjective में more than one syllable है, जैसे कि इसको हम एक ही बार नहीं बोल पा रहे हैं, उसको हम क्या किए हैं? ब्रेकअप किए हैं. Intelligent. Intelligent. So intelligent को हम ब्रेकअप किए हैं. That is why when you make up, या तो आप क्रिएट करोगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में, then you will write intelligent, more intelligent and most intelligent. Most intelligent. क्लियर हो गया कंसेप्ट? कहाँ पे मोर Yes, आता है, ma'am. कहाँ पे मोस्ट आता है, और कहाँ पे ई आर होता है, कहाँ पे ओनली आर होता है. Yes, ma'am. क्लियर हुआ बच्चे? यस अभी वन मोर मैम। क्वेश्चन आई विल गिव यू. टॉल. टॉल में क्या होगा? Taller, tallest. डिग्री. Taller, Yes, tallest. tall, taller, tallest. Taller. Tall, taller, tallest. Tallest. ये हुआ ना? Yes, correct. Tall, taller, tallest. Why? Why it is R or ER? और EST? क्यों यहाँ पे R लगा है? क्योंकि it is one syllable. Yes, it is a one syllable adjective. Only one syllables adjective है, इसीलिए हमने यहाँ पे we have written only ER और EST. सनी को समझ में आया बेटे? Yes, ma'am. समझ में आया है तो बताओ बेटा, और नहीं आया है तो you have to ask me. मैम एक बार और। ठीक है. देखो बेटा, इसमें जो हम अभी डिग्री पढ़ रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग डिग्री पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे उसको हम कंपैरेटिव करते हैं, सॉरी पॉजिटिव को हम कैसे कंपैरेटिव करते हैं, कहाँ पे मोर लगता है और कहाँ पे ई आर लगता है और आर लगता है. दैट कंसेप्ट आई एम मेकिंग यू क्लियर. तो यहाँ क्या होता है, जहाँ पे वन सिलेबल होता है, जो शब्द ओनली एक ही बार में उसको उच्चारण कर पाते हैं, वी कैन से इन अ वन वर्ड, वी कैनॉट सॉरी इन वन सिलेबल्स, वी कैनॉट ब्रेक दैट वर्ड. तो उसमें हम ई आर और आर लगाते हैं. जैसे कि थिन, थिनर, थिनेस्ट. स्वीट, स्वेटर, स्वीटेस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. ठीक है, समझ में आया सनी? और जो Yes, ma'am. सिलेबल जो मोर देन वन सिलेबल है, उसमें हम मोर और मोस्ट लगाएंगे. जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. Most beautiful. मैम मुझे नहीं Most. समझ में आया। हाँ रिया, आपको समझ में नहीं आया बेटा? किसको नहीं आया बताओ, नाम बताओ. रिया, मैम। यस तो किसको समझ में नहीं? अच्छा ठीक है, रिया को समझ में नहीं आया. वन सिलेबल जो होता है, जो एग्जेक्टिव वन सिलेबल का मतलब होता है एक ही आवाज में उस शब्द को बोलोगे. जैसे कि रिच, ठीक है, रिच जो एक ही बार बोल पाए, उसके लिए ई आर और ओनली आर लगता है. कंपैरेटिव में आर और ई आर लगेगा. समझ में आया रिया? यस और नो? और सुपरलेटिव में ई एस टी होगा. यस Clear? मैम। और यदि मोर देन वन सिलेबल है, एक बार में उस शब्द को नहीं बोल पा रहे हैं, उसको बीच में ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल. सो वी आर ब्रेकिंग द वर्ड इन बिटवीन. सो दैट इज योर मोर देन वन सिलेबल है ना, इसीलिए वहां कंपैरेटिव बनाओगे एंड सुपरलेटिव बनाओगे. वहां पे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल यू विल मेक. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। मैम यस ना, क्लियर हो गया. वेरी गुड. सो अभी हम जैसे फॉर एग्जाम्पल विल राइट मनीष इज रिच. ओके,
सोनाली, मनीष इज रिच। यदि हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने चाहेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? मनीष को मनीषा से कंपेयर करते हैं, ठीक है? ओके, मनीष को मनीषा से कंपेयर करेंगे, करेक्ट? सो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? हाउ वी विल मेक द सेंटेंस? Manish is richer than Manish Manisha. is यस, करेक्ट। मनीष इज रिचर देन मनीषा। यदि हम उसको और ज्यादा, सबसे ज्यादा, उस एरिया से सबसे ज्यादा अमीर बनाने चाहते हैं, सो हाउ विल मेक दैट डिग्री? उसको तारीफ करने के लिए कैसे बनाएंगे? हाउ विल मेक? Manish is the richest person. richest person. यस, मनीष इज द रिचेस्ट पर्सन। द रिचेस्ट पर्सन, उस एरिया का सबसे ज्यादा अमीर मनीष है। क्लियर? यस बेटा? Yes, Yes or no? क्लियर हो गया। सो यहाँ पे यू विल सी अनदर थिंग, वन मोर, जैसे कि सम एडजेक्टिव दे डू नॉट चेंज देयर रूल और दे आर वेरी मच, क्या बोलेंगे, बहुत अकड़ने वाले, अकड़ते हैं ना इन हिंदी यूसेज। स्टबन को इन हिंदी अकड़ना बोलते हो ना? यस और नो? Yes. हाँ, तो ये चीजें कोई कोई एडजेक्टिव ना, दे आर वेरी मच स्टबन, और दे इतना अकड़ है कि उन लोग चेंज नहीं होने चाहते हैं, कि उनका चेंज होते हैं लेकिन वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपने आगे पीछे। समझ में आया? Yes. समझ में आया? कोई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि इतने अकड़ वाले होते हैं, उनका इतना एटीट्यूड होता है कि दे डोंट वांट टू मिक्स एनीवन। जैसे मोर और मोस्ट और ई और ई आर को भी उन लोग क्या करते हैं? उन लोग क्या करते हैं? जैसे मतलब डिफरेंट होता है। यू विल सी लाइक गुड, गुड को आप देखोगे इसका थोड़ा सा अकड़पन है। बेटर बेस्ट होता है ना? Yes, ma'am. बेटर बेस्ट होता है। और जैसे कि यहाँ पे यू विल सी हियर गुड, गुड को देखा ना बेटा? गुड, गुडर, गुडेस्ट होता है क्या? होता है या नहीं होता है? No, ma'am. है? कौन बोल रहे हैं हाँ मैम? गुड, गुडर, गुडेस्ट होता है बेटे? नहीं, नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, इन लोग किसी को मिक्सअप नहीं करने चाहते हैं। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता है, गुड, बेटर, बेस्ट best. है ना? सो इन Yes, लोग ma'am. क्या है, इन लोग अपने अकड़ में रहते हैं। Yes, दे ma'am. डोंट वांट टू गिव अप देयर थिंग्स। सो गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, करेक्ट? फॉर Yes, एग्जाम्पल ma'am. अभी मैं दूंगी आप लोग को, प्लीज राइट इट डाउन। दिस हाउस इज, कम ऑन राइट इट डाउन। This house is dash। मैम दोबारा repeat। This house, this THIS, this Yes, ma'am. house HOUSE, house is Yes, ma'am. IS dash, fill in the blanks छोड़ो वहां पे, and bracket में you write big, BIG, big than yours। Ma'am, big than yours, yours। yes, ma'am. full stop। now here you see one more thing बेटा, जब भी आप लोग को than है, so you will understand that sentence that it is a comparative degree, where you will put the degree that will be your comparative degree, not the superlative or positive। जहां पे भी आपको than दिखाई देगा ना, yes, are you listening me? Yes, बेटा, ma'am. are you listening me? Yes, तो ma'am. जहां पे भी आप लोग को सेंटेंस में बेटे आप लोग को द दिखाई, सॉरी, दैन दिखाई देगा, THAN,
So automatic you will understand that these sentence will become the comparative degree. So I have given you in the bracket that big. So big का comparative क्या होगा गुंजन? मैम बिगर. Yes, bigger हुआ. क्यों bigger हुआ? क्यों biggest नहीं हुआ? मैम क्योंकि 1 syllable. 1 syllable है और प्लस आपके दाइन भी है ना? यस मैम, और इसे ब्रेक नहीं कर Yes. सकते. हाँ, इसको ब्रेक नहीं कर सकते ना. तो हम 1 syllable नहीं होता तो हम मोर बिग बिगर मोर बिग और मोस्ट बिग बोलते क्या इसको? It is impossible, है ना? We Yes, cannot ma'am. break this. That is why we have to write er, है ना? Bigger than इसीलिए लगा than है, इसीलिए हम we have written that bigger. यदि वहां पे द होता तो क्या लिखते? बिगेस्ट. Guest. So easily you will understand. आपको easily समझ में आ जाएगा कि जहां पे than है वहां कंपैरेटिव आएगा और जहां पे द है वहां पे सुपरलेटिव आएगा. क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हुआ? यस करण? Yes. यस Yes, ma'am. रोशन? अंकित? Yes, Not ma'am. रोशन. हाँ यस रोशन. समझ में आ गया बेटा? फिर one more sentence. The flower is, write it down. The flower is dash. Dash. Bracket में you write it down. Beautiful. Than the one. Ma'am, again. The flower is Yes, ma'am. dash. Dash लगाओ बेटे. And you Yes. bracket में you write it down. Beautiful. Bracket closed. Than the one. Than THAN. Than Ma'am. the one. The Ma'am, flower the flower. is Yes, ma'am. Yes. dash लगाओ. Then Yes, you ma'am. write the Yes, adjective beautiful. Yes, ma'am. Bracket closed. Then the one. Yes. Then the one. Did you write it down? Yes, ma'am. Now you Yes, fill up ma'am. that. You fill up. Now you have understood. One syllable है या more than one syllable है. You have to see that. उसी के अनुसार you have to write er or what you have to write. I have told you. Ma'am, more beautiful, most beautiful. Ma'am, the flower is more beautiful than other one. Yes, correct. The flower is more beautiful than the other one. Okay. Excuse me. ओके क्यों यहाँ पे ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हुआ? मैम क्योंकि it is more than 1 syllable. यस करेक्ट मोर देन 1 syllable है इसीलिए वी कैनॉट पुट ER और जस्ट EST है ना तो गलती Yes. नहीं करना बेटा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करोगे. ओके Yes. यस ठीक है. Yes, इंटेलिजेंट ma'am. इंटेलिजर इंटेलिजेस्ट बोलोगे? नो No, No ma'am. मैम. we cannot say that है ना because it has more than 1 syllable. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अच्छा अभी one more thing which is the which is the dash लिखो which is the dash. Ma'am, repeat. Which is the Yes, ma'am. dash dangerous
ब्रैकेट क्लोज करो, एडजेक्टिव मैम लिखो।